पहले बताएं. Okay, you can do what seems best. श्रेय का रुक गया शायद. It's fine. You can continue. श्रेय आपकी आवाज नहीं आ रही. So, ma'am, I'll go first. I wanted to say that both comparative religion and the study of religion, actually what happened in this course, we were studying a lot about Jainism through agams, through philosophy, logic. Karke, when comparative religion came in, it was the first subject which was a little mind opening. Like it helped build better tolerance for other views and to park your own and to be able to see that. And then research methodology, all these were very, they were moving a little away from mainstream Jain studies, so which came in the third and fourth semester. So by the time we came to theology and like study of religion, I think like I did not know anything about Judaism. I didn't know much about Islam. So firstly, it helped me understand things from that perspective कि हम सब अपने अपने तरीके से समझना चाहते हैं, समझते हैं, we have assumptions and we have maps of what is Hinduism, what is this, but then we realize how diverse our traditions really are, like from Sankhya to like, it was a whole range of things from Mimamsa to Advait philosophy. सब कुछ हमने बहुत deep में Sikha. That was very good. It helped me open my mind a little bit. Secondly, I also learned a lot from you about how to give respect and its due respect to every religion. Because I think I mentioned this earlier also in class कि आप जैसे गुरु नानक देव जी बोलते हैं या आप प्रॉफिट मोहम्मद साहब ऐसे करके बोलते हैं, तो वो बहुत मतलब with a lot of love and respect, and that was something I learned as a value from you, that whatever your beliefs are, abhi tak we are not very sure on what you follow, right? But we see you giving equal respect, and I think that is what Anekantvad is also about. And in the absence of an arihant, we don't know. We must mutually respect every point of view, and when it comes to religion, we are respectful of whether they believe in God or don't, or whether they worship or not. We do actually we had a better understanding of Jainism from a comparative lens when we learned about other religions. So for me, it was a very good subject, and learning from you was really incredible. It really helped me open my mind. That's nice. Thank you. Very nice. Okay, others, please. Tell me about your experiences and all these things. Shall I share, ma'am? Yes, yes. So to start off with, I would say it was a very interesting journey और आपके सब्जेक्ट में स्पेशली राइट फ्रॉम लास्ट ईयर भी जब हमने इतने सारे दर्शन का सब पढ़ा था, हमारा ऐसा था कि हम इतना जैन धर्म में थे कि बस वही है, उसी को पढ़ना है, उसी को जानना है. We didn't have like कि बाकी धर्मों के बारे में भी सीखना है, करना है या कुछ. तो इनिशियली तो जब स्टार्ट हुआ तो लगा what is all this. But by the end of third semester, I feel it was very nice experience learning about all other religions. और last year तो I feel जितना आपने वो बोल के जितना मतलब it was इतना रट्टा मारा कि हर चीज के बारे में अभी 4 लाइन तो सब बोल ही सकते हैं, कभी भी पूछो. तो वो एक चीज बहुत अच्छी थी बिकॉज वो एक ऐसा था कि हमको पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज हमारा वो ना उसमें इंटरेस्ट था ना कुछ था, बट यू मेड दैट सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग. आई फील आपने जिस हिसाब से पढ़ाया एंड यू डिडंट स्टिक ऑन द सेम मेथड दिस टाइम. आई थिंक आपने लास्ट ईयर से इस ईयर यू चेंज द मेथडोलॉजी ऑल्सो. अभी जैसे कि कितने भी धर्म रहने तो इस बार आप चाहते तो 1-2 क्लास में भी फिनिश कर सकते थे. लेट इट बी शक्तिज्म, 2 क्लासेस वाज एनफ फॉर दैट कि दिस इज शक्तिज्म एंड दिस, बट आप इतना डेप्थ में जाते थे कि एटलीस्ट 2 पॉइंट अभी उस दिन के याद हो जाए. तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी. मतलब काफी हर रिलीजन का भी यू कुड हैव वाइंडेड अप योर क्लासेस वेरी क्विकली आल्सो, बट ग्रेट. दैट थिंग आई रियली अप्रिशिएटेड कि आपने इतना डीपली सब चीज पढ़ाया कि उसमें से अगर हम 10% भी अगर सुन लिए रहेंगे तो इट इज एनफ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So Yes. I feel you took our journey very smoothly, and plus you knew when to pause, when to drag, how to shift. So I feel वो हमको बोलने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी. That transition you only did.
तो ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस कि हमने इतने रिलीजन्स पढ़े, सब जाना, तो इट जस्टिफाइड आवर डिग्री, मतलब कंपैरेटिव फिलोसफी व्हाट इट इज. आई फील दिस फुल पार्ट वी स्टडीड फ्रॉम यू ओनली in both the semesters. Yes, Actually, exactly. that is So it was, a very good observation, Alka ji, what she made in methodology. इस बार अगर आपने notice किया हाँ, होगा, class के बाद में discussion कराते थे सबका. That was very correct. useful also. That was very nice. And मुझे नए नए Because she आउटपुट्स knew, देखे like आप लोग के. last year when she started, I think she used all the options, and then I think ma'am could catch easily कि हम लोगों को क्या चाहिए. So that transition she made it very smoothly. Yes. So very happy about that. या मोस्टली वी ट्राई टू, मतलब रेलिवेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. हाँ, तो आप लोग का सुन के मुझे बड़ा मजा आया कि आप ऐसे सोचते हो कि ये पर्टिकुलर रिलीजन का किस प्रकार से इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं सोसाइटी का, इसमें से क्या ले सकते हैं. मतलब आपने जैसे सिमर जी ने बोला ओपन माइंड रखा, एंड यू वर नॉट correct. सिलेक्टिव कि सिर्फ जैनिज्म पढ़ना है. यू वर लाइक कि जिसमें जो अच्छा है हमको वो निकाल के पढ़ना है, प्लस उसको साथ ही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और अपने बिहेवियर में शो करना है. सो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फाउंड. बहुत अच्छा लगा. राइट. तो यस, कंटिन्यू करते हैं. सविता जी बताइए. ये जर्नी एक्चुअली में बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसे जुड़ेंगे, नए न्यू फ्रेंड्स बने, न्यू टीचर्स मिले, और एक जो कॉलेज लाइफ अपने जी थी पुरानी वो वापस अगेन जी, बचपन अगेन जिया. और उसके बाद में अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ना पढ़ाई के मामले में, तो जैसे कि जो मंदिर वाले हैं तो मंदिर का पढ़ रहे हैं, जो स्थानक वाले हैं वो स्थानक का पढ़ रहे हैं, बस उसी के एक दायरे में बंधे हुए थे. अभी दिगंबर धर्म क्या है इतना पता था, लेकिन उनके जो आचार्य है कुंद कुंद स्वामी के बारे में पढ़ा, पंचाशीतिकाएं पढ़ा, ये सब पढ़ा. और जो डिसर्टेशन में जो बुकें पढ़ी है ना, वो ऐसा लगता है कि बहुत सारी पढ़ ली, आगम की बहुत सारी बुकें पढ़ ली हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल. और जो ये रिलीजन के बारे में पढ़ा तो हम तो वहीं तक सीमित थे, जैन धर्म तक ही थे. जैसा कि मैंने अभी एक लाइन में आपने बोला था आंसर दो, तो मैंने बोला कि नैतिकता में सब एक जैसा है, तो एक देखने का नजरिया भी कुछ चेंज हुआ. जैसे पहले इस्लाम धर्म को एक अलग नजरिए से देखते थे, या सिख धर्म है या वैष्णव धर्म है, वो यज्ञ कर रहे हैं, हिंसा हो रही है, मतलब एक नजरिया था हमारा अलग. अभी नजरिया अलग हो गया कि धर्म सब एक है, हमारा देखने का नजरिया है कि हम उनमें से अच्छी चीज को लें. वो क्या कर रहे हैं वो नहीं, उनकी अच्छी बातों को हम कैप्चर करें और हम उनको ग्रहण करें. क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो धर्म सभी धर्मों में ग्रहण करने योग्य होती है, जैसे आत्मा है या दुखों से मुक्ति है, तो सब अपने अपने मार्ग बताते हैं, तो हम उसमें से किसी भी मार्ग पे चल के आगे बढ़ सकते हैं. और एक कॉन्फिडेंस आया एक्चुअली में कि हम कुछ कर सकते हैं, जो कि लाइफ थोड़ी रुक गई थी, घर गृहस्थी के में थोड़ा सिमट गए थे हम लोग. अब थोड़ा बाहर निकले, कुछ नया, और एक जिज्ञासा उत्पन्न है कि नहीं अब तो और कुछ जानना है हमें, और कुछ पढ़ना, हम पढ़ सकते हैं और कुछ जान सकते हैं. तो ये जो प्लेटफॉर्म हमें जैन यूनिवर्सिटी से मिला है, रियली ये लाइफ में एकदम चेंज लेके आया है. हम सबकी लाइफ में ही लाए हैं. हो सकता है हम सब, आप सब लॉन्ग लाइफ के लिए थोड़ा जुड़े हुए भी रहेंगे तो कुछ नया नया और भी सीखेंगे. एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वेरी, बहुत अच्छे से आपने कंपाइल कर दिया बोलने सविता में जी तो आपकी बहुत जर्नी सारे को. बोल सकते हैं मैं, अभी सब हाँ. बाकी है. यस, डेफिनेटली. ठीक है. हाँ, अभी जल्दी जल्दी कोमल जी बताइए, सुमन जी, इंदिरा जी, शे आप भी बताइए. जय जिनेन्द्र बेसिकली मैम. अबाउट दिस कोर्स, रिलीजन स्टडी. Ma'am, this course is like a roller coaster of so many religion. कभी सुना नहीं, कभी उन चीजों के बारे में कभी समझा भी नहीं. आई वाज लाइक, जैसे मैंने बोला कि जैनिज्म वाज लाइक इनबिल्ट इन मी. बस उसी के इर्द गिर्द जो चीज देखते थे उसी के हिसाब से भी सोचते थे. बट इतने अभी जैसे मैंने प्रेजेंटेशन किया इस्लाम को लेके, देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच वाज वेरी न्यू टू मी. कभी उन चीजों के बारे में कभी नहीं देखा, ना कभी समझा. और जैसे सिमर जी का सबके रिलीजन के बारे में जो हमने देखा,
इट वाज लाइक बहुत कुछ सीखने मिला। एंड इस कोर्स में भी जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेके मैं बताना चाहूंगी, कभी ब्रह्मी लिपि क्या होती है, ब्रह्मी लिपि के बारे में इतना इन डेप्थ, जैसे हेमा मैम ने अभी लिखा रहा है हमको एज ए असाइनमेंट ब्रह्मी लिपि, इट इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। पहले तो लगा कि कैसे लिखेंगे, जब हमने वो नवकार मंत्र लिखा इट इज लाइक सो गुड। तो वेरी नाइस मैम। कभी जैसे हम लोग लिख रहे थे तो घर वाले भी सारे देख रहे हैं क्या ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग नहीं, आई एम लर्निंग समथिंग। सो इट इज लाइक वेरी नाइस मैम, बहुत कुछ चीजें बहुत नई सीखी हम लोगों ने। सो दिस हमने रिलीजन के सिंबल्स नहीं बनाए सबके वो एग्जैक्टली। अभी आपने ये ब्राह्मी लिपि का बोला तो मुझे याद आया कि हाँ ये भी एक असाइनमेंट हो सकता यस था हो करके। सकता है। वी ऑल रोट लाइक पूरे 12 खड़ी हम लोग लिखे एंड पूरा नवकार महामंत्र हम लोगों ने ब्रह्मी लिपि में लिखा है। वेरी नाइस, थैंक यू बहुत मैम। अच्छे। ओके, हाँ इंदिरा जी आप हैं यहाँ पे? हाँ हाँ मैम, हूँ हाँ मैं मैम। बताइए, हाँ व्हाट यू लर्न मैम, फ्रॉम दिस कोर्स? मैम जैसे सभी ने बताया तो सेम एक्सपीरियंस तो मेरा है ही है, बट सबसे ज्यादा वो है कि मैंने सिर्फ अभी तक के जैन धर्म को ही देखा था, पढ़ा था, और चाहते तो हम दूसरे धर्मों को भी बुक लेकर के पढ़ सकते थे और अपनी जो वो कर सकते थे, पर आपने जो जिस तरीके से हमारे डाउट्स को क्लियर किया है और डिस्कशन के लिए ओपन प्लेटफॉर्म दिया कि कोई भी अपने डाउट्स को बोल सकता है, डिस्कस कर सकता है, और फिर उसके बाद में जब आपने अपने इनपुट दिए तब हमें लगा कि वाकई में ये ऐसा भी हो सकता है। तो जो आपका पढ़ाने का तरीका रियली, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए भी आपने आधी आधी घंटा अपने सब्जेक्ट को रोक करके, अपने टॉपिक को रोक करके आपने हमारे लिए पूरा के पूरा पीरियड निकाल दिया कि भाई नहीं चलो आप लोग डिस्कस करो, कुछ तो आप लोग समझ रहे हो, कैसे तो अपने अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात थी कि हमारे छोटे छोटे डाउट्स भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर किए। नो डाउट की जिज्ञासा होती है तभी क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद में हम जानने की कोशिश करते हैं, बट आपने उन जिज्ञासाओं को बहुत अच्छे से किया, इसलिए कंपैरिजन जो किया है इन धर्मों के बारे में, पहले दर्शन पढ़े और अभी सारे धर्म पढ़ रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने मिला। इन धर्मों के बारे में नहीं जानते थे, पर आपने जिस तरीके से समझाया है वो बहुत अमेजिंग था मैम। तो जैन धर्म तो खैर जितना जानेंगे, जितना हर धर्म के बारे में पढ़ेंगे उतना बहुत कम ही है, बट बेसिक नॉलेज हम सभी धर्मों का बहुत अच्छे से मिला, और पूरा उसका श्रेय क्रेडिट मैम आपको जाता है कि आपने बहुत अच्छे से समझा, और इसलिए हर धर्म को पढ़ने की अब इच्छा हो रही है। थैंक यू सो मच इंदिरा जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब इंटरेस्ट दिखा रहे हो। अभी इंटरेस्ट आ रहा है तो साथ ही साथ क्यूरियोसिटी के साथ साथ आप नए नए इंफॉर्मेशन लेना शुरू करेंगे, नॉलेज लेना शुरू करेंगे, तो इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है ये। मैम बुक एंड पढ़ बात कर और सकते थी थे मैम मैम, पर कि आपने समझाया ना इसलिए इंटरेस्ट पड़ा है, नहीं तो हम लोग आज कोई भी, मैं सिख धर्म की कोई भी बुक लेकर बैठ जाऊं तो वो एक मजा नहीं आएगा। जितना आप एक्सप्लेन कर रहे हो, छोटी छोटी बात जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो ना, उससे इंटरेस्ट पड़ गया हमारा कि नहीं हमको पढ़ना है अब इन धर्मों के बारे में कि क्या लिखा इन धर्म के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है मैम कि ना एक फेस सामने होता है ना, तो आपका जो फेस है ना उससे हमको ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ हमको बताने की जिज्ञासा है। मतलब एक रीडिंग, फेस रीडिंग जो बोलते हैं ना, उससे ऐसा हाँ। लगता है जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं हमें बहुत कुछ जानना है, और आप बोलते जाते हो, हम मतलब उसको माइंड करते जाते हैं। तो फेस रीडिंग भी मायने रखती है कि हाँ। सामने वाला मतलब शांति से सुनने के लिए बैठ जाता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, कुछ कानों को भी अच्छा लग रहा है, मन को भी अच्छा लग रहा है। फिर सेकंड डे जब आप वापस वो दोहराते हो, फर्स्ट डे जो पढ़ाया उसका सेकंड डे, तो एक वापस रिमाइंड हो जाता है शॉर्ट में, तो वो दिमाग में चीज बैठ जाती है। वो मैम एक बहुत गुड कूल हो आइडिया था। मैम, एक्चुअली मैम आप बहुत कूल हो। हम लोग मतलब इतना कुछ कुछ भी डिस्कशन करते रहते हो ना, फिर भी आप कभी गुस्सा I नहीं was किए मैम। just बहुत Indira ji, हंसते I हो was मैम, आप about भी to बहुत say हंसते that. हो, सभी बहुत हंसते हो। मैं words वही बोलने वाली थी मैम, you're very cool. You're राइट very cool. मैम, आपका मैंने मतलब चैनल कभी भी आप फॉलो गुस्सा करती ही हूँ। नहीं कर रहे हो मैम। आप ये नहीं बोले कि कब बस अभी हमको टॉपिक कंप्लीट करना है तो वाइंड अप करो, ये ऐसा कभी नहीं। आप बिल्कुल हाँ चलो आप आराम से डिस्कस करो, क्या डाउट से बताओ, हम लोग एक बार और ऐसा डिस्कशन करेंगे, हम आप कॉलेज आ जाओ, हम लोग फिर पूरी इस बात को बात करेंगे करके, मतलब आप चाहते हो कि हम ज्यादा से ज्यादा सीखें, वो बहुत बड़ी बात है।
दैट इज द ओनली थिंग। आपने बहुत सही मतलब कैच किया। मैं यही चाहती हूँ, मेरा इंटेंशन यही है कि आपके वो दिमाग में जैसे बोलते हैं ना कि इम्प्रेशंस, वो संस्कार वो आ जाए जो भी हम पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, ताकि वो एक एज अ रिमाइंडर खुद ब खुद आपके जब भी ऐसा कुछ करने जाओ तो वो रिमाइंडर जैसा है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। वो डिसीजन लेने में जो है आपको हेल्प हो। जैसे कि अब सिमर जी ने स्टार्ट किया कि डिस्टिंक्शन होना चाहिए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, है ना। तो वही एक इंटेंशन रहता है, वही एक सोच रहती है कि आपकी लर्निंग कितनी एडवांस हो जाए। ये जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी सेक्शंस रिलीजन्स के पढ़े हो, उससे यही एक इंटेंशन है कि उससे आपकी लर्निंग एडवांस हो जाए और प्लस उसको आप एक्सपीरियंस करो और साथ साथ आपके बिहेवियर जो है, आपकी कंडक्ट है, उसमें वो दिखे। तो आई थिंक कि ये जर्नी तो मेरे लिए भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने भी खूब खूब सीखा है, बहुत सीखा है, पहले से डबल सीखा है। और होपफुली कि और भी आगे इसको और पढ़ पढ़ के सीखते जाऊं, क्योंकि इस बार तो मैंने बेसिकली रिलीजन पढ़ाने के लिए पहले तो बुक्स पढ़े थे, बट इस बार मैंने और बुक्स खरीदे। मैं आपको दिखाऊंगी जब भी मतलब ऐसे फोटोज भेजूंगी कि मैंने कितने सारे बुक्स पढ़े हैं पर्टिकुलरली फॉर दिस कोर्स। मतलब एक बंडल, एक ऐसे बड़ा सा लिस्ट तैयार हो गया बुक्स के। मैंने अमेजोन से ऑर्डर करती गई कि चलो अभी पढ़ना ही है, इसको पढ़ाना ही है, तो इसको और अच्छे से कड़ा कर लिया जाए, स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। और इतनी सारी बुक्स डे बाय डे, एक दिन इस्लाम खत्म किया, दूसरे दिन सिखिज्म पढ़ रही हूँ, तीसरे दिन क्रिश्चियनिटी पढ़ रही हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो, माय गॉड, लाइक क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं आपके। इंदिरा जी के तो मेरे को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से मैं इसके आंसर्स दूं करके, कि कैसे क्वेश्चंस है। बट फिर उससे और क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और फिर वो क्या है कि उसका जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो मैंने मैम फिलहाल सबसे बड़ी बात वही मैम आपकी कि है ना, आप कभी भी इरिटेट नहीं हुए हमारे क्वेश्चन से। कई बार लगता था कि हम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आप स्माइल मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमको लगता है कि कुछ सीखे और आराम से बिंदास हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लगता भी कि क्या पूछ रहे हैं, पर आप बिल्कुल रियली ग्रेट मैम, थैंक यू सो नहीं, मच। बट ये बहुत अच्छा है आपका क्वेश्चनिंग का, क्योंकि उससे हमारा भी एक इंसाइट क्लियर होता है कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। होता है ना कि आप जिस प्रकार से सोच रहे हो शायद मैंने वैसा नहीं सोचा, तो फिर वो एक नया इंसाइट ऐड हो जाता है। और फिर वो और बुक्स को ढूंढो, खोजो, पता करो। अभी तो मुझे इतना मतलब अच्छा लगा रिलीजियस स्टडी पढ़ा के कि आई एम लाइक विजिटिंग ऑल द प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स, जैन टेम्पल इतने सारे विजिट किए मैंने। मुझे मजा आ रहा है, लाइक आई एम रियली एंजॉयिंग ऑल दिस थिंग। उसको मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, जो भी मैं आप अभी विजिट कर रही हूँ टेम्पल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट करके आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू ब्लॉगिंग। तो मेरे को लगता है कि ये यही से शुरू हुआ है, ये कोर्स से ही शुरू हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, बट अभी और ये अच्छा हो गया है। जैसे कि आप लोग ने भी आई थिंक मीनाक्षी जी ने टेम्पल्स पे किया, आपने भी कुछ किसी पे किया, तो इसको हम लोग और आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम में फिलहाल क्या हो रहा है कि सब खत्म किया जा रहा है ना, डिस्ट्रॉय हो रहा है सब कुछ, टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो ये जो पुराने नॉलेज है, पुराने ज्ञान सिस्टम में परंपरा है, ये अभी नहीं है कल्चर में। तो वी कैन डू इट, हम उसको फिर से एक नई तरीके से टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको री इन्वेंट कर सकते हैं और रिनोवेट कर सकते हैं। राइट, तो आई थिंक कि आप लोगों ने मुझे इस चीज के लिए काफी सपोर्ट किया है, टू रिनोवेट द थिंग्स, टू रीडिजाइन द थिंग्स, स्ट्रक्चर्स को, और पीपीटीज वगैरह जो भी हमने किया, वो सब काफी हेल्पफुल रहने वाले फॉर अवर नेक्स्ट जर्नी। यू नो, मतलब आगे जो भी करेंगे उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो अगेन सभी को वेरी वेरी थैंक यू कि आप लोग की वजह से, फॉर बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू, ईच ऑफ यू, हमने ये जो कोर्स है इसके बारे में और स्टडी की और इसको एडवांस लेवल पे लेके गए। एंड इसी की वजह से अभी आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे जो ये कोर्स पढ़ेंगे, उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि आप लोग ने इसमें इतना अच्छा इनिशिएटिव दिया, इतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा है। एंड इसकी वजह से अभी आगे जो भी लोग आएंगे, जो भी जुड़ेंगे, उनको हेल्प रहेगा। सो वंस अगेन मतलब मैं सबको अच्छे से विश भी करना चाहती हूँ फॉर योर एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, डेजर्टेशन जिसके लिए आप डर रहे हो, सबके लिए। प्लस आपको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ये रिलीजन स्टडी कोर्स चैलेंजिंग था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप लोग को उसको इंट्रोडक्शन पहले नहीं मिला है, बट
इस फेज के थ्रू मिला, और इस फेज के साथ जो भी आप लोग ने किया था, परफॉर्मेंस बेसिस, असाइनमेंट बेसिस, जो भी है, इट वाज वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा रहा है. So kudos to all of you, congratulations to all of you, and all the best for your exams, है ना? ठीक है. मैम एग्जाम में मार्क्स मिले या ना मिले, जो भी मिले ठीक है, बट हम लोग अपने आचरण में जरूर लेकर आ रहे हैं. सारे धर्मों को Yes. देखा कि इनका क्या बेसिक है, तो सोच रहे हैं कि पहले अपने आचरण में लेकर के आ जाएं, उसके बाद में तो फिर है. एग्जैक्टली, दैट इज, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. सबसे इम्पोर्टेंट वही, मायने वही रखता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम कितना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं मोरली, कल्चरली, और हमारे इंडिविजुअल एस्पेक्ट में कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हमारा पर्सनालिटी कितना एडवांस हो रहा है, वही मैटर करता है. हम आगे क्या कर रहे हैं वही मैटर करता है ना. पुराना छोड़ के आगे हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं. ठीक है. तो आई होप सो और भी डिस्कशंस होंगे. आप लोग के जो फीडबैक्स है, जो भी आप लोग बोल रहे हो, वो आगे आने वाली जर्नी में काम आएंगे, लोगों को एक प्रकार से इंस्पायर करेंगे टू बी पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, है ना. मैम आपको हमारा पेज कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मैंने अभी शैतान, बोला, हम शैतान वाले क्वेश्चंस आप बच्चे थे. पूछते हो, आप इंटरेस्ट दिखाते हो, आप क्यूरियोसिटी, आप रेगुलर होते हो क्लासेस में. यहाँ पे मैं सच बता रही हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट 1 घंटा बैठना और सुनना. इट इज वेरी डिफिकल्ट. मैं ट्राई करती हूँ, बट आई ऑल्सो स्लीप समटाइम्स. मैं भी सो जाती हूँ, इट हैपेंस, ये होता है. बट आप लोग पूरा अवेयरनेस के साथ क्लासेस करते हो, पूरा सुनते हो A to Z, उस पे क्वेश्चंस करते हो, उस पे डिस्कशंस करते हो, एंड इट इज वेरी बेस्ट. बहुत ही अप्रिशिएटिव है कि आप करते हो. मैम आप ही के क्लास में ज्यादा करते हैं वैसे. तो होना भी चाहिए. मतलब ये टॉपिक ही ऐसा है कि यू हैव टू डिस्कस इट. तो मुझे तो आप लोग का सबका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा. सबको एक इंटरेस्ट था सब्जेक्ट के बारे में जानने का, नॉलेज लेने का, सबसे इम्पोर्टेंट. क्योंकि काफी लोग डिग्री के लिए पढ़ते, बट आप में से ऐसा कोई भी नहीं था कि जो डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं. सभी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप ये पढ़ाई कर रहे हैं. दैट इज अ मोस्ट अप्रिशिएटेड. मतलब बहुत ही ज्यादा ही ऐसी चीज है कि जिसको हम आगे आपके बारे में बताएंगे लोगों को. लोग इंस्पायर हो सकते हैं आपकी जो जर्नी रही है, आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उससे. दैट इज वाई वी वांट टू मेक इट स्पेशल. उसको कवर करेंगे थोड़ा सा, उसको अच्छे से वी विल फ्रेम इट अप कि आगे जो भी लोग देखते हैं आपकी जर्नी को, दे विल गेट इंस्पिरेशन. दैट इज द थिंग, है ना. ठीक है. ओके, सो वी विल आज का कंक्लूड करते हैं. और आप लोग तैयारी कीजिए, सब कुछ है आपके पास ऑलरेडी. जस्ट प्रिपेयर इट अप, गियर इट अप, एंड आप आ जाइए एग्जाम देने. ठीक है. ओके. मैम एक पूछना था डाउट मैम. मैम तृप्ति मैम है, मैम आज है या कल?